خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو زندگی سمجھنا چاہیے۔ خدا کو اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈھالنے کے بجائے ہمیں خدا کے کلام میں خدا کی مرضی تلاش کرنی چاہیے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 45، رفاقت۔ خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان رفاقت واقعی خوبصورت ہے۔ بائبل آدم اور حوا کے گناہ کرنے سے پہلے کی اس خوبصورت حالت کے بارے میں بتاتی ہے، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ ٹھیک ہے، بائبل خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ کتنا خوبصورت ہے۔ ان کا رشتہ شرمناک نہیں تھا، وہ ملاپ، وہ صحبت بہت خوبصورت تھی۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ بائبل مختلف چیزوں کے بارے میں جو خدا چاہتا ہے بیان کرتی ہے۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے جو چاہتا ہے وہ اس کا ڈر رکھنا، اس کی تمام راہوں پر چلنا، اسے پیار کرنا، اپنے پورے دل و جان سے اس کی بندگی کرنا اور ان احکام اور قوانین پر عمل کرنا جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ میں کیا لے کر خدا ان کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوکھنی قربانی اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ بائبل مسلسل بیان کرتی رہتی ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا یک سالہ بچڑے سے زیادہ سوختنی قربانی کے لیے بہترین جانور ہزاروں مینڈوں یا زیتون کے تیل کی 10,000 نہروں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سوختنی قربانی کے طور پر بھیڑ کے پہلوٹے یا پہلے پھل جیسی قربانیاں پیش کرنے سے بھی زیادہ خدا کو کچھ اور پسند ہے۔ یہ راست بازی پر عمل کرنا، رحم دلی کو عزیز رکھنا اور خدا کے ساتھ عاجزی سے چلنا ہے۔ یہ مسلسل اور عاجزی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے، نہ کہ صرف ہفتے کے ایک دن کے لیے یا ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے۔ اس کا مطلب ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو مستقل طور پر خدا کو خدا تسلیم کرتی ہے۔ ہمیں خدا کو اپنی زندگیوں کے مرکز میں اپنے بادشاہ کے طور پر رکھنا چاہیے۔ جبکہ ہم خادموں کے مقام پر آتے ہیں، یہی کامل صحبت ہے۔ صحبت یہ نہیں کہ میں خدا کے بجائے تخت پر بیٹھوں اور خدا کو حکم دوں، یہ اپنی شناخت اور اپنی حیثیت کو جاننا اور خدا کے ساتھ عاجزی سے چلنا ہے۔ خدا کے ساتھ چلتے وقت ہمیں سمت کو جاننا چاہیے۔ رفاقت کا مطلب ہے ساتھ رہنا۔ دوست ایک ساتھ ہیں اور جوڑے ایک ساتھ ہیں، تاہم رفاقت کو خوشگوار صحبت بنانے کے لیے تمام ساتھیوں کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ اگرچہ رفاقت کا سفر مشکل اور کٹھن ہے، لیکن اگر ہم اسی سمت چلے تو ہم جیت سکتے ہیں۔ خدا نے واضح طور پر بنی اسرائیل کو ہدایت دی اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ یہ ٹھیک ہے، خدا نے مصر میں بنی اسرائیل کو کنان نامی ایک سمت دی اور انہیں سیدھے وہاں جانے کو کہا۔ سمت واضح تھی، اگرچہ خدا نے جس کنان کی بات کی گئی تھی وہ جسمانی کنان نہیں تھا، بلکہ بالآخر خدا اور یسوع مسیح میں ایک واضح اشارہ تھا۔ تاہم بنی اسرائیل نے سمت بدلنے کی مسلسل کوشش کی، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان
मैदान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमाबरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उसके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हो। खुदा ने उन्हें अपनी तरफ आने को कहा, लेकिन इसराइल ने खुदा को छोड़ दिया और दुनिया में चले गए। उनकी ज़हनियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में देखते थे। ये ठीक है, रफाकत के लिए, खुशी और शुक्रगुजारी से लबरेज होने के लिए साथियों की सिमत एक होनी चाहिए। अगर सिमतें मुख्तलिफ हों तो हम एक साथ एक ही सिमत की तरफ नहीं बढ़ सकते, ये नामुमकिन होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा साथी कौन है। रफाकत का मतलब है जुए को साथ उठाकर चलना। दूसरे अल्फाज में ये खुशी, गुस्सा, गम और मुसर्रत सब का एक साथ तजुर्बा करने के बारे में है। इकट्ठे अपने सफर के दौरान हम हमेशा खुश और पुरमुसर्रत नहीं रह सके। जो मुझे पसंद है वो करना और जो नापसंद है उसे रद्द करना रफाकत नहीं है, ये हमेशा साथ रहना है। जवाब में यीशु ने कहा कि अपना जुआ उठाओ, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। यीशु हमें अपने जाने के लिए कह रहा है। इसराइल में जुआ आम तौर पर एक दोहरा जुआ था जिसे दो जानवरों से खींचा जाता था। लिहाजा जब यीशु ने मेरा जुआ कहा, इसका मतलब था कि यीशु पहले ही इस जुए में दाखिल हो चुका था। अगर यीशु जुआ उठा ले तो सब कुछ हो जाएगा। यही वजह है कि यीशु हमसे उस जुए को उठाने के लिए कहता है जिससे यीशु साथ लेकर जा रहा है। वो हमसे मिलकर चलने को कह रहा है। वो हमें अपने साथ चलने, उससे सीखने और आराम पाने के लिए कहता है। जुआ जो यीशु पहले ही उठा रहा है वो आरामदेह और हल्का है। लिहाजा हमें ये जानना चाहिए कि हम किसके साथ चलते हैं। अगर हम जिस शख्स के साथ चलते हैं वो खुदा और यीशु है तो उसमें हकीकी आराम है। ये गिर नहीं सकता, ये नाकाम नहीं हो सकता, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। रफाकत वो चीज है जो हम रोजाना रखते हैं। यीशु ने कहा कि जो लोग खुदावंद के पीछे आना चाहते हैं उनको खुदी से इनकार करना, अपनी सलीब उठाना और उनके पीछे चलना चाहिए। मजीद बरां यीशु ने जिक्र किया कि जो लोग उसके साथ रहना चाहते हैं उन्हें रोजाना उसके पीछे चलना चाहिए। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हकीकी रफाकत गैर तब्दील शुदा है। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए, हमारी जरूरियात के लिए वहाँ मौजूद होने के बारे में नहीं है। ये माजी या मुस्तकबिल की कोई चीज नहीं है, बल्कि वो चीज है जो हाल में होती रहती है। ये रोजाना एक साथ रहना है। हम आज खुशी से साथ चलते हैं और अगर कल का दिन दोबारा दिया गया तो हम एक और दिन साथ चलते हैं और अपनी बाकी जिंदगी के लिए इसी तरह चलते रहते हैं। हमें रूहुल कुद्स से मामूर होना चाहिए। खुदा के लोग जो पुराने अहदनामे की तारीख से गुजरे बेलाखिर नए अहदनामे में दाखिल हुए और यीशु मसीह से मिले, जो हकीकी खुशखबरी के साथ आया और रूहुल कुद्स से मामूर था। जैसा कि वो पुराने अहदनामे से गुजरे, ये एक बहुत वाज़ेह अहद था कि खुदा के वक्त पर रूहुल कुद्स आएगा। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में
से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे, और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सकूनत करोगे, और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। और इसके बाद मैं हर फर्द बिशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। और वफादार खुदा ने रूहुल कुद्स भेजा। रूहुल कुद्स भेजने का मतलब ये नहीं है कि खुदा बाप और खुदा रूहुल कुद्स दो मखलूक हैं, और जो खुदा की तरफ से बतौर एक इंसान आया वो यस्सु मसीह है, और जो खुदा की तरफ से बतौर रूह आया वो रूहुल कुद्स है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जैसा कि हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, हम जानते हैं कि अगरचे बनी इसराइल को खुदा के लोग कहा गया, लेकिन वो खुदा के लोगों के लायक जिंदगी नहीं गुजारते थे, वो खुदा के लोगों की हैसियत से नहीं रहते थे, मुकद्दस नहीं थे, और उसके लोगों की हैसियत से खुदा की इतायत नहीं करते थे। उन्होंने खुदा की शरीयत को भी ना माना, या ज्यादा वाज़ेह तौर पर वो खुदा के लोगों की हैसियत से नहीं रह सकते थे, पाक नहीं हो सकते थे, इतायत नहीं कर सकते थे, या कवानीन को बरकरार नहीं रख सकते थे। गुनहगार लोगों और एक मुकद्दस खुदा के दरमियान मिलाप नामुमकिन है। यही वजह है कि यस्सु हमारा खुदा आया, हमारे तमाम गुनाहों की कीमत अदा की और सलीब पर मर गया। गुनहगार कीमत अदा नहीं कर सकते, और खुदा का रूह उस सुलह के रास्ते पर आया जिसे यीशु मसीह ने खोला, और सिर्फ वही लोग जो खुदा की रूह से मामूर हैं खुदा के साथ चल सकते हैं। लिहाजा खुदा के साथ चलना बराबरी की बुनियाद पर चलना नहीं है। हमें खुदा में कायम रहना चाहिए। हम दो मखलूकात के तौर पर नहीं, एक वजूद के तौर पर काम करते हैं। मुझ में कायम रहो। इससे पहले कि यीशु ने हतमी सलीब उठाकर खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया, उसने अपने शागिर्दों से कहा, मुझ में कायम रहो। यीशु में कायम रहना खुदा में कायम रहना है। सिर्फ यीशु ही मुकद्दस खुदा में रह सकता है, और हम खुदा में तभी कायम रह सकते हैं जब हम यीशु में कायम रहें। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। खुदा के साथ चलना और यीशु मसीह के साथ चलना इस तरह है। हम ईमान के साथ यीशु मसीह में कायम रहते हैं, और यीशु मसीह में कायम रहना यीशु मसीह के साथ रहना और खुदा के साथ चलना है। अगर मेरी बातें तुम में कायम रहें। यीशु ने कहा, जिस तरह हम यीशु में कायम रहते हैं इसी तरह यीशु की बातें, खुदा का कलाम भी हम में कायम रहता है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम एक अनदेखे खुदा और यीशु के साथ नहीं चल सकते, ताहम हम खुदा के कलाम को बरकरार रख कर खुदा के साथ चल सकते हैं जो उसने हमें दिया है। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। लिहाजा खुदा के साथ चलने के लिए हमें खुदा के कलाम को जिंदगी समझना चाहिए। खुदा को अपनी ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक ढालने के बजाय हमें खुदा के कलाम में खुदा की मर्जी तलाश करनी चाहिए, और हमें उसके कलाम पर अमल करना है। हमें उसकी बातों को मानना है। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये ठीक है। खुदा के साथ चलना, कलाम के साथ चलना और खुदा के कलाम पर अमल करने का मतलब खुदा के अहकाम पर अमल करना है, और खुदा के अहकाम पर अमल करने का
مطلب محبت کرنا ہے، یہ خدا اور اپنے پڑوسیوں سے اپنی مانند محبت کرنا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے، یہی ہے خدا سے محبت کرنا اور اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنا، خدا کے ساتھ چلنا ہے۔